আকাশবাণী আগরতলা। নমস্কার শ্রোতা বন্ধু, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সংবাদ সেবা বিভাগের আজকের বিশেষ আলোচনামূলক অনুষ্ঠানে। শ্রোতা বন্ধু, গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও চলছে পক্ষকালব্যাপী স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচি, যার মূল প্রতিপাদ্য স্বচ্ছতা অভিযানে পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জন অংশগ্রহণ, যাকে বলা হচ্ছে স্বচ্ছতা মে জনভাগিদারি। জন অংশগ্রহণের মাধ্যমেই যে স্বচ্ছ গৃহ, স্বচ্ছ বিদ্যালয়, স্বচ্ছ কার্যালয়, স্বচ্ছ পাড়া, স্বচ্ছ রাজ্য এবং স্বচ্ছ দেশ গড়ে তোলা সম্ভব। আমাদের প্রত্যেকের স্বভাব ও সংস্কারে যেন চলে আসে স্বচ্ছতার অভ্যাস। এই আহ্বান নিয়ে গত 17 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি, যা শেষ হবে আগামী 1 অক্টোবর। এরই অঙ্গ হিসেবে 2রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তীতে দেশ জুড়ে উদযাপিত হবে স্বচ্ছ ভারত দিবস। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে স্বচ্ছতাই সেবা উদযাপনের অনেক আকর্ষণীয় কর্মসূচিও নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং নাগরিকদের তরফে। রাজ্যেও পালিত হচ্ছে এই কর্মসূচি। নগর উন্নয়ন দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তর, বন দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর এবং সকল নগরপালিকা সংস্থা, পুর নিগম, পৌরসভা, পুর পরিষদ থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত এবং স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও এই স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে। এক কথায় বলতে পারি, সারা রাজ্যের প্রতিটি অংশের মানুষ স্বচ্ছতা অভিযানে সামিল। স্বচ্ছতার শপথ নেওয়া থেকে শুরু করে মানববন্ধন, স্বচ্ছতার জন্য পদযাত্রা, সাইকেল র্যালি, হাটবাজার, ধর্মীয় পর্যটন স্থানটিও সাফাই করা সহ নানানভাবে স্বচ্ছ করা হচ্ছে পরিবেশকে। শ্রোতা বন্ধু, আজ এই নিয়েই আলোচনা করব, অর্থাৎ স্বচ্ছতা হি সেবা কিভাবে রূপায়ণ হচ্ছে আমাদের রাজ্যে। এই কর্মসূচিতে অনেক বড় ভূমিকা নিচ্ছে নগর উন্নয়ন দপ্তর। আমাদের সঙ্গে আজ আলোচনায় রয়েছেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা রজত পান্ত। তো রজতবাবু, প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইব যে স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি এখন তো প্রায় শেষের দিকে, তাই না? কিভাবে রাজ্যে পালিত হচ্ছে এই কর্মসূচি, কোন কোন দপ্তর এই কর্মসূচিতে সামিল হচ্ছে এবং এর মধ্যে জন অংশগ্রহণ বা জনভাগিদারি যেটা বলা হচ্ছে, এই ব্যাপারটা কি ও কিভাবে হচ্ছে, কতটা সফলতা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, সেই বিষয়টাই প্রথমে জানবো। स्वच्छता सिर्फ गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव नहीं है कि सरकार को ही स्वच्छता करनी है। जब तक हम लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे तब तक स्वच्छता पाना मतलब असंभव है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो दो माध्यम से दो क्षेत्रों में पूरा राज्य डिवाइडेड है। आप जानते हैं कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया। अर्बन एरिया में जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज है, उनके जितने भी विंग्स है, वार्ड्स है, तो वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज करेगी। दूसरा क्षेत्र है रूरल एरिया, जो डिस्ट्रिक्ट्स होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर के जरिए, वहाँ के बीडीओ के जरिए, एसडीएम के जरिए हम चाहते हैं कि ब्लॉक और पंचायत लेवल में अलग अलग कार्यक्रम कराए जाए, जैसे ग्राम सभा कराई जाए ग्राम पंचायत लेवल पे, ताकि सभी लोगों को जोड़ा जा सके। सरकार की दो बॉडीज के अलावा जितने भी एनजीओज हैं और विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, और जितने भी हमारे त्रिपुरा में इतने सारे क्लब्स हैं, उन सबको जोड़ के, उन सबके सहयोग से हम चाहते हैं कि इस बार का जो हमारा 14 दिन का ये शिविर है, स्वच्छता ही सेवा का पूरा कार्यक्रम है, इसको बल मिले। हाँ, स्वच्छता ही सेवा शुरू होने से सबसे पहले राज्य स्तर पे चीफ सेक्रेटरी सर के चेयरमैनशिप में हमने मीटिंग करी थी 14 तारीख से पहले। तो उस मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज और डायरेक्टर्स को बुलाया गया था और सभी में कुछ कुछ काम बांटा गया। जैसे जो अलग अलग इसमें चीजें हमें करनी है, जैसे साइक्लोथॉन, मैराथन, इसका भार एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया, और एक पेड़ माँ के नाम का भार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया गया, और ह्यूमन चेन्स बनाने का विद्यालय और जितने भी यूथ है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने का, जैसे स्वच्छता फुटबॉल लीग, क्रिकेट लीग, इसका हमने स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दिया गया इसका, और ग्राम सभा करवाने के लिए पंचायत डिपार्टमेंट को भार दिया गया। अर्बन एरियाज में जितनी एक्टिविटीज कराने के लिए यूडीडी डिपार्टमेंट को, और जितना भी प्रचार प्रसार का जो जिम्मा है वो आईसीए डिपार्टमेंट। तो भी मैंने आपको एक्टिविटीज बताई, जैसे एक पेड़ माँ के नाम और हेल्थ शिविर लगाना, कल्चरल प्रोग्राम करना, ये सभी सारे यूएलबीज और डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। রজত বাবু, রাজ্যেতে এমন বহু স্থান রয়েছে যে স্থানগুলিতে প্রতিনিয়তই বহু মানুষ আসা যাওয়া করেন, যেমন বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান, ঐতিহাসিক স্থান, পর্যটন স্থান। এইসব স্থানগুলিতে জনসমাগম প্রায় প্রতিনিয়তই থাকে, ফলে এই স্থানগুলিতে নোংরা আবর্জনা জমারও একটা লক্ষণ থাকে বা জমে প্রতিনিয়তই। সেই সব স্থানের জন্য কিভাবে আপনারা নজর দিচ্ছেন বা কিভাবে কাজ করছেন? हर बार की तरह हमारा फोकस रहता है कि
जितने भी हमारे टूरिज्म के स्पेशल प्लेसेस हैं, हमारे मंदिर है बड़े बड़े, जहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में लोग आते हैं, और वो हमारे राज्य को उससे गर्व मिलता है ऐसी जगहों से, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है हमारे राज्य की, जहाँ बाहर के लोग आके देखते हैं कि राज्य में कोई अगर स्टेट में आएगा त्रिपुरा में, तो हर जगह तो जाके देखेगा नहीं होता है, तो वो तो मेन जगह जाएगा, जैसे मातावाड़ी मंदिर है वहां जाता है, या ऊनाकोटी के जो हमारी साइट है आर्कियोलॉजिकल साइट, वहां पे जाता है, या छवि मोरा जाता है। तो हमारा स्पेशल फोकस रहता है कि इन जगहों को हम यहाँ पे मिशन मोड में स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत 2-3 बार, हम आमतौर पे भी इनको साफ सफाई रखते हैं, पर मिशन मोड में हम चाहते हैं कि ऐसा इनको ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए अलग तरीके से, और ऐसा दिखे कि मतलब जो राज्य में हर जगह हो रहा है वो वहाँ पे उसका एग्जेम्पलीफाई हो, जो भी हम राज्य। আরেকটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, নগর এলাকায় বলুন বা বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় বলুন, কোনো কোনো এমন স্থান রয়েছে যে স্থানগুলিতে বহু বছর ধরে বহু মানুষ একই জায়গায় আবর্জনা ফেলছেন। বলা যেতে পারে বর্ষ পুরনো আবর্জনার স্তূপ, পরিষ্কার হচ্ছে না সেই স্থানগুলিতে। সেই সব স্থানগুলি নিয়ে বিশেষ কোনো নজর দিচ্ছেন কি আপনি? प्लास्टिक जो ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफिकेशन है वो सब आइडेंटिफाई करे गए, और हमारे आज की तारीख में 60% से ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स हम क्लीन भी कर चुके। तो हमें जो भी हम क्लीन करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वो रोज का रोज हमें पोर्टल में अपलोड करना पड़ता है। तो इस बात पे मुझे गर्व है कि राष्ट्रीय स्तर पे भी त्रिपुरा का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है अभी तक, और हम आशा करते हैं कि 2 अक्टूबर तक हम सारी एक्टिविटीज 100% अचीव करेंगे, और एक मीनिंगफुल संदेश जाएगा सोसाइटी में कि स्वच्छता ही सेवा क्यों जरूरी है, और प्लास्टिक से निजात पाना और सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम करना, इसके लिए हम हमेशा एक्टिविटीज करते रहते हैं। बट हमने स्पेशल फोकस किया कि यूएलबीज में रेड्स की तादाद बढ़ाई गई है, कि पहले हम कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार रेड करते थे, अब हमने कहा कि ज्यादा हमें रेड करना है, और किस तरीके से हम सिंगल यूज प्लास्टिक को रोक पाए और उस पर चालान लगा पाए जो लोग उसको यूज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने आइडेंटिफाई करी कि जितनी भी हमारी एसएचजीज है जो ऑल्टरनेट कुछ बनाती है प्लास्टिक का, जैसे क्लॉथ बैग हो गया या जूट बैग हो गया, जिसको प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज किया जाए, क्योंकि उनको बढ़ावा दे रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि यूएलबी के थ्रू उनको बढ़ावा मिले और उनके सामान को हम बेच पाए, ताकि क्यों सभी लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ ही हम स्वच्छता को पा सकते। अगर सिर्फ डिपार्टमेंट काम करेगा, हम काम करेंगे, तो उससे स्वच्छता में मिलेगी नहीं। तो ये मैसेज सबको जाना है, और ये जा भी रहा है। जिस तरह से त्रिपुरा का परफॉर्मेंस आप देखेंगे, हर एक्टिविटी में हमने बहुत अच्छा किया है। রজতবাবু, এমন বহু জায়গা রয়েছে যেখানকার মানুষ ফেলে দেওয়া আবর্জনা বা বর্জ্য সাফাই যেগুলো হয়ে যায়, সেই জিনিসগুলো দিয়ে কোনো না কোনো কারুশিল্প জাতীয় জিনিস করে চলছেন। এটা একটা উদ্ভাবনার বা সৃজনমূলক কাজ আমরা বলতেই পারি। আমাদের রাজ্যেও এমন বহু কাজ করছেন বহু মানুষ। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এরকম উদ্যোগ কি নেওয়া যেতে পারে? কি বলবেন বিষয়টায়? आर्ट कुछ अगर बना पाए अपनी क्रिएटिविटी को लेके, किस तरीके से गंदे कूड़ा, ई वेस्ट, मेटल वेस्ट, क्रैप वेस्ट, इस सब से जोड़कर कुछ आर्ट बना सके, तो उसको हमने करने के लिए बोला है। और जो भी जितने भी स्कूल कॉलेजेस में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आर्ट बनाया से कुछ बनाया जाएगा, वेस्ट को हम राज्य स्तर पर 2 तारीख को अवार्ड भी करेंगे। इसके अलावा जो त्रिपुरा आर्ट कॉलेज है, वहाँ के जितने भी आर्टिस्ट है और जो भी त्रिपुरा के विख्यात आर्टिस्ट है, उनसे हमने निवेदन किया है कि वो राज्य स्तर पर एक बड़ा स्कल्पचर वेस्ट से लेके बनाए। तो हम 2 तारीख के दिन जो हमारा स्टेट का म्यूजियम है उज्जैनता पैलेस में, वहां पे उसको डिस्प्ले करेंगे। वो दर्शाएगा कि किस तरीके से त्रिपुरा वेस्ट को ना सिर्फ एक गंदगी की तरह देखता है, जबकि उसको एक आर्ट के रूप में कैसे तब्दील किया जा सके, और कैसे उससे हम ऐसा कुछ मीनिंगफुल बना सके, और जो लोगों की धारणा है वेस्ट को लेके ये तो गंदगी है, उससे हम कैसे पार पाए और सही उसका यूज। আচ্ছা স্যার, বিশেষ করে শহর ও নগর এলাকায় এখন সরকারি পর্যায়েও অনেক স্বচ্ছতা অভিযান রোজই চলছে, সাফাই অভিযান চলছে। বিশেষ করে রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, রাস্তায় রাস্তায় শৌচালয় করা হয়েছে এবং লোকেরাও ব্যবহারও করছেন সেটি। তেমনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিত্যদিনের আবর্জনাও সংগ্রহ করা হচ্ছে, সেই সব আবর্জনাকে আবার প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। এই সব দায়িত্ব যারা পালন করছেন, অর্থাৎ এক কথায় বিরাট অংশের একটা সাফাই কর্মী বা সাফাই মিত্ররা এই দায়িত্ব পালন করছেন, তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কি কোনো ব্যবস্থা রয়েছে? तक सारी सरकार की स्कीम्स पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, ये सब के लिए हमने सफाई मित्र सुरक्षा शिविर लगाए, जिसके अंतर्गत जितनी भी भारत सरकार और राज्य सरकार की स्कीमें हैं, जैसे इंश्योरेंस की स्कीम हो गई, या किसी का आधार बनाना है, किसी का राशन कार्ड अगर छूट गया है, तो इसमें हम टारगेट तरीके से, और जो भी हमारी स्टेट की स्कीम है जैसे जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, और ये सब चीजों में लोगों को जोड़ना है, और कोशिश कर रही है कि सारी स्कीम उन तक पहुंचे। इसके अलावा जितने भी सफाई कर्मचारी है उनके लिए एक हमने हेल्थ कैंप लगाया, ताकि जो भी उनके लिए और उनके परिवारों के लिए, कि कोई भी ऐसी बीमारी है जिनके बारे में उनको पता नहीं है, कुछ
फ्री मेडिकल चेकअप, जिसमें हम के माध्यम से, जैसे किसी की आंख में कोई तकलीफ है, किसी के कहीं बदन में दर्द और ऐसी कोई बीमारी है जिसका उसको पता नहीं है, तो ये फ्री हेल्थ कैंप के जरिए उनको हम ये सुविधा प्राप्त। স্যার, আমাদের সময় প্রায় শেষ মুহূর্তে সবশেষে স্বচ্ছতা নিয়ে জনগণ এবং আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে আপনার? जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि स्वच्छता अगर हमें पानी है राज्य में, तो ये तो सिर्फ गवर्नमेंट अगर चाहे ये कोई स्कीम की तरह इसको लॉन्च कर दे, तो ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी और हो गई। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के कार्य करने से नहीं होगा। तो हमारा तो हमेशा राज्य के जितने भी सिटीजन से यही निवेदन रहता है कि जब तक हमें जन भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक इसको पाना नामुमकिन है। आप जानते हैं हमारे देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, बट सिर्फ गवर्नमेंट अगर ये इस पे लगे रहेगी तो ये अचीव करना अगले 100 साल में भी अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है, जब तक हमें जन भागीदारी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो स्वच्छ भारत मिशन का मेन मोटो है वो है स्वच्छता हमें पानी है जन भागीदारी के द्वारा। तो जब तक सारे लोग नहीं जुड़ेंगे, और ये लोगों में अब अभी आप देखेंगे पिछले 5-10 साल में जब से स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ है, तब से आप खुद देखेंगे कि आपके खुद के व्यवहार में, लोगों के व्यवहार में बहुत चेंज आया है। उनको अब लगने लगा है कि किस तरीके से मतलब गीला सूखा कूड़ा अलग अलग डस्टबिन में फेंकना चाहिए, और किस तरीके से मुझे बाहर कूड़ा नहीं फेंकना है, जबकि पहले हम अपने घर से बाहर से फेंक देते। तो काफी चेंज आपको भी देखने को लगेगा पिछले 10 साल में हमने अचीव किया है। और इस बार 10वीं सालगिरह है, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था, और ये 10 साल में जो भी हमने अचीव किया है इसमें लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और जिस तरीके से बच्चे ने, छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल्स में इन सबको मतलब स्वच्छता पे बात करी जा रही है, विभिन्न कॉलेज में, ऑफिसेस में स्वच्छता प्लेज लिए जा रहे हैं। सभी लोगों के जब जुड़ेंगे, सभी लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, उसी से हम स्वच्छता को मतलब अचीव कर पाएंगे। और हम आशा करते हैं कि 10वीं सालगिरह में हमने जितना मीनिंगफुल चेंज किया है, अगले आने वाले सालों में जब विकसित भारत बनेगा, तो विकसित भारत, गांधी जी का सपना, स्वच्छ भारत का भी, उसी के साथ जो कई मेन स्तर में हमने अचीव कर लिया है। बट जैसे हम जाते हैं विदेश में, जब देखते हैं कि हम बात करते हैं, अमेरिका जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि कितनी क्लीन कंट्री है। तो वैसे ही कोई विदेशी भारत में आए, वो बोले कि भारत जैसी क्लीन कंट्री मैंने देखी नहीं। तो यही हमारा सब। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। শ্রোতা বন্ধু, এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি রাজ্যের নগর এলাকায় বা গোটা রাজ্যেই কিভাবে পালিত হচ্ছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরলেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা রজত পান্ত। শ্রোতা বন্ধু, চলুন না আমাদের আজকের এই আলোচনামূলক অনুষ্ঠান থেকে আমরাও শপথ গ্রহণ করি যে আমরা প্রত্যেকেই প্রতিটা দিন আমরা নিজেরা যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকব, আমাদের চারপাশ, আমাদের পাড়া, আমাদের এলাকা, আমাদের শহর, আমাদের গ্রামকে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব সকলে মিলে। শ্রোতা বন্ধু, আজকের মতো আলোচনামূলক অনুষ্ঠান তাহলে এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।